Hello, students. Welcome to this amazing and interesting topic of respiration in organisms. My name is Amrit, and let's begin. So, okay, think about this. ऐसा कितनी बार हुआ होगा आपके साथ when you are playing or you are in any sort of physical activity, then you started breathing very heavily. आपको जोर जोर से सांस लेने की जरूरत पड़ी, राइट? आप बहुत टायर्ड फील कर रहे थे एंड आपको ऐसा फील हो रहा था कि you will just give up, right? So at this point of time, one thing which you might have realized is आपको जोर जोर से सांस लेने की कितनी जरूरत पड़ती है, right? So now the question comes is, why does this happen, right? When your body is involved in lot of physical activity, severe physical activity, right, then your body it starts breathing heavily, right? So why do we respire? That is the question over here, right? So whenever any organism, when they perform any sort of physical activity, उनके बॉडी में एक प्रोसेस होती है जिसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, right? So बिफोर वी गेट इन टू द डिटेल्स ऑफ दिस, राइट, पहले ये समझते हैं कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो किस तरह से बनी है. सो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ योर एंटायर बॉडी, राइट, दैट इज योर एटम, राइट. नेचुरली एटम से आपके मॉलिक्यूल्स बनते हैं. ये मॉलिक्यूल्स दे ऑल कम टुगेदर एंड दे फॉर्म द सेल्स in your body. Right now the cell, it is the most basic fundamental unit, right, which is present in your body. आपके सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड it performs a lot many important activities in your entire body. Group of cells which performs similar functions, right, group of cells which performs similar functions, they make up your tissues, right. Tissues which perform similar functions, they make up your organs. And different organs in your bodies, like, right, your circulatory system, your respiratory system, digestive system, जिनमें आपके stomach present होता है, small intestine, large intestine, liver, pancreas, ये सारे अलग अलग systems आपके body में organ systems बनाते हैं, right? And these different organ systems, they work together to make up your entire organism, right? So this is how you can identify or differentiate between your cells and tissues and organs, right? So और ये जितने भी सेल्स आपके बॉडी में प्रेजेंट है, वो सब एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट? और ये फंक्शंस बहुत सारे तरह के हो सकते हैं. इट कैन बी इन्वॉल्व्ड इन न्यूट्रिशन, इट कैन बी इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्टेशन, राइट, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, राइट. एंड ये किसी भी तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, वेदर दे आर डाइजेशन का फंक्शन हो, ब्रीदिंग हो, ब्लड सर्कुलेशन की बात हो, ये सारे एक्टिविटी को करने के लिए आपके बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, राइट? एंड नॉट जस्ट योर बॉडी, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी एनी ऑर्गेनिज्म which is present, right, whether they are your unicellular organisms like bacteria, multicellular organisms हो गए, plants, animals, उन सबको ही को एनर्जी की जरूरत होती है, right? So now the question comes is, how do we get this energy, right? And the answer has something to do with this, right? So okay, before we go into the details of the chapter, right, let me give you a basic introduction about a cell, right? तो ये एक आपके टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर होता है, राइट? यहाँ पे मैंने प्लांट सेल लिया है. तो तीन चीजें आपको यहाँ पे समझनी है विच इज प्रेजेंट इनसाइड योर सेल बिफोर वी मूव अहेड. द फर्स्ट पार्ट इज, आपके सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, right? There is a nucleus which is present inside your cell. This acts like the brain of the cell, right? इसी से ही आपके सेल के सारे एक्टिविटीज कंट्रोल होते हैं. The other part which is present inside the cell is your mitochondria,
right? We'll get into the details of this after some time. और ये बीच का आप जितना भी पार्ट दिख रहे हैं, राइट, ये जो ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस आपको दिख रहा है, दिस इज योर साइटोप्लाज्म. ठीक है, ये तीनों टर्म्स को याद रखिएगा. We will get into the details of how these three are important, right? So whenever we eat something, right, or whenever we are reading or we are playing or doing any sort of activity, all of that requires energy, right? Now again, coming back to our original point, that ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, where does this energy comes from, right? So क्या ये हवा से मिल रही है हमें, right? क्या ये हमारे चारों तरफ किसी फॉर्म में प्रेजेंट है? So the answer to this is, it's quite simple actually. This energy, it is stored in the food that we eat. ठीक है, और यही फूड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, इसी फूड में से हम एनर्जी जनरेट करते हैं, राइट? सो the energy which is stored in whatever type of food that you eat, right, that is released during the process of respiration. ठीक है, so जितने भी organisms, right, all the organisms which are present, all of them, they respire to get energy from food, right? And therefore food is such a vital part for our existence, right? So अब ये जो पूरा प्रोसेस है आपका रेस्पिरेशन का, राइट, सो लेट्स ब्रेक दिस डाउन. रेस्पिरेशन का जो आपका पूरा प्रोसेस होता है, इसमें दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है. एक होता है फूड, द अदर पार्ट इज एयर. नाउ एयर में भी ऑक्सीजन की जरूरत हमें पड़ती है, राइट? सो breathing is a process जिसके साथ आप familiar है, right? You continuously keep on breathing, right? It is something which starts from the day you are born and it keeps on going on and going on, right? So whenever you breathe, right, what you are basically doing is you are breathing in air. और ये air के अंदर क्या present होता है? इस air के अंदर oxygen present होता है, right? Now when we breathe out carbon dioxide, right? So ये कार्बन डाइऑक्साइड अभी कहाँ से आया, right? Is it the same carbon dioxide which was present in the air that we are breathing in, and वही चीज वापस बाहर आ जा रही है without interacting with our body, right? So let's look into this. So basically what happens is, जो भी एयर हम ब्रीद करते हैं हमारे बॉडी में, that is transported to different parts of our body, to each and every cell of our body. हमारे बॉडी के हर एक सेल में उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. और जब वो हमारे सेल में पहुंचता है, तब वहां पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन हमारे एयर में प्रेजेंट है, वो हेल्प करता है टू ब्रेक डाउन द फूड दैट वी हैव ईटन, राइट? और ये जो आपका पूरा प्रोसेस है, इन विच द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, इट इज एक्चुअली हेल्पिंग टू ब्रेक डाउन द फूड दैट यू हैव ईटन, वो पूरे प्रोसेस को हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं. एंड द इंपॉर्टेंट थिंग विच हैपेंस इन दिस प्रोसेस इज एनर्जी रिलीज होती है, राइट? सो दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड in the cell with the release of energy is called cellular respiration, right? Quite simple, बहुत ही simple सा definition है इसका, right? Basically जो भी आप food consume कर रहे हैं, ये food को आप small parts में break down कर रहे हो, ठीक है? अब ये food के break down से क्या होता है, energy generate होती है, and for this to happen you require oxygen, ठीक है? as simple as that. So जो भी cellular respiration होता है, राइट, नाउ दैट इज समथिंग विच टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स. क्योंकि अगेन कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको ही को एनर्जी की जरूरत है, right? All of them require energy, and in order to get energy they need to
do this process of respiration, which they will be able to do when they consume food and they also take in air, राइट. सो बहुत सारे प्रोसेसेस साथ में इंटरट्वाइंड है, एक एक करके समझते हैं इसके बारे में. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, जो हमारे प्रीवियस चैप्टर्स थे, राइट, मोर स्पेसिफिकली द चैप्टर ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, देयर वी हैव लर्न दैट whatever food that we are eating, we are digesting, it gets broken down into smaller and smaller parts, right. जैसे जितने भी हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहे हैं, so that is broken down into smaller and smaller parts and it is finally absorbed in our blood in the form of glucose. ठीक है. Similarly जो भी proteins हैं, they are broken down into amino acids and जितने भी fats हैं, they are broken down into fatty acids plus glycerol. ठीक है. फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है एंड देन इट इज अब्सॉर्ब्ड इनटू आवर बॉडी. तो ये ग्लूकोज, राइट, व्हिच वी गेट from the breakdown of these complex carbohydrates, right, this glucose is broken down to produce carbon dioxide and water using oxygen, right. And जब ये ब्रेकडाउन का पूरा प्रोसेस जो हो रहा होता है, ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट, एंड which happens, right, in the presence of oxygen or which uses oxygen, this process is called aerobic respiration, right. So very important term, aerobic respiration. This is something which regularly happens in our bodies, in the body of plants, right. सो बेसिकली यहाँ पे क्या कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, यू नीड योर ग्लूकोज, देन यू नीड ऑक्सीजन, राइट. और ये दोनों के रिएक्शन की वजह से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन करता है और जो एंड रिजल्ट है उसमें हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, राइट. एंड वन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है, राइट, दैट इज एनर्जी, राइट. ठीक है. सो व्हाट ऑल थिंग्स गोज इन ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट, जो जनरेट हो रहा है, दैट कम्स आउट फ्रॉम आवर बॉडी व्हेन वी एक्सहेल. तो इनिशियली जब मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, राइट, दैट जो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम एक्सहेल कर रहे हैं, राइट, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है, इट कम्स फ्रॉम दिस प्रोसेस, राइट. ये जो पूरी प्रोसेस है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, राइट. और ये जो एनर्जी जो जनरेट हो रही है साथ में, दैट हेल्प्स टू कीप अवर बॉडीज रनिंग. जितने भी हमारे बॉडी में एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं, राइट, वो सब बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. सो लेट्स सी, राइट, लेट्स ब्रेक डाउन दिस रिएक्शन. अगर हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, राइट. So aerobic respiration में what happens is glucose, right, that becomes your starting product. Glucose ये break down हो रहा है in the presence of oxygen. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसे ब्रेक डाउन किया जा रहा है. जो एंड रिजल्ट हमें मिल रहा है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, राइट. एंड दिस इज समथिंग विच अवर बॉडी रिक्वायर्स. ठीक है. इसी से हमारी बॉडी चल रही है. नाउ दे और ये हमारी बॉडी यूटिलाइज कर सकती है, राइट. वाटर एंड एनर्जी इज समथिंग विच अवर बॉडी कैन यूटिलाइज. दिस इज समथिंग जो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकता है अगर उसे बॉडी से बाहर नहीं निकाला गया, राइट. सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है. ठीक है. तो ओके, ऑन द सरफेस इट लुक्स ऑल सिंपल एंड एवरीथिंग, राइट. थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं. हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस किया कि ये जो पूरी प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, राइट, दिस टेक्स प्लेस इन आवर सेल, राइट. तो आपके सेल में ब्लड जो आपका होता है, राइट. नाउ ब्लड क्या काम करता है? ब्लड ये दोनों चीजों को आपके सेल में
पहुंचाने का काम करते हैं, राइट। सो जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं, राइट, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन टू योर सेल, ठीक है। ऑक्सीजन आपके सेल के अंदर पहुंच गया है, प्लस आपको ये भी पता है कि जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, राइट, डाइजेशन के टाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में देर आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे हम विलाई बोलते हैं, राइट। सो वॉट एवर फूड दैट यू ईट दैट इज बीइंग absorbed into your blood vessel, right, or into your blood via your villi, right। तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों प्रेजेंट है, ग्लूकोज भी आपके सेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, right। And now what happens, this entire process of respiration takes place, right। respiration का आपका process होता है, glucose it is broken down, the molecule of glucose is broken down in the presence of oxygen, we get carbon dioxide plus water और energy generate होती है, right। this carbon dioxide is now again absorbed back into the blood, राइट। और ये ब्लड अभी कहाँ जाता है, दिस ब्लड गोज टू योर लंग्स वेयर इट इज एक्सेल्ड आउट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। सो इस तरह से आपका पूरा प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली चलते रहता है, राइट। व्हेन यू इनहेल, जब आप इनहेल करते हैं तब ऑक्सीजन अंदर आता है, राइट, इट गेट्स मिक्स्ड विथ योर ब्लड, दिस ब्लड, राइट, जिसमें अब ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, जिसमें अभी ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, ये आपके बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचता है, हर एक सेल तक पहुंचता है, हर एक सेल में ग्लूकोज और ऑक्सीजन को ट्रांसफर किया जाता है, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, वाटर एंड एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, carbon dioxide is again reabsorbed back into the blood and then it is removed from the lungs by the process of exhalation, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन का। ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, राइट, very easy. Now there is also a method through which food can also be broken down without using oxygen, right। आप ऑक्सीजन यूज किए बिना भी खाने को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, राइट। सो द फर्स्ट प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड को ब्रेक डाउन किया जा रहा था दैट वाज एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। एंड ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है तो दैट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, हम उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जब आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज का जो आपका मॉलिक्यूल होता है, राइट, इट इज ब्रोकन डाउन। जब आपके एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं मैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू अ स्मॉलर मॉलिक्यूल व्हिच इज कॉल्ड पायरुवेट, राइट। एंड दिस पायरुवेट, और ये जो आपका पूरा प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है, वो आपके साइटोप्लाज्म में होता है, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो पायरुवेट है दिस इज अगेन फर्दर ब्रोकन डाउन, राइट, इन द प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। एंड यू नो ये फर्दर यहाँ पे और बहुत सारे सेवरल रिएक्शंस होते हैं, और ये रिएक्शन कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं इनसाइड योर माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, जिसके बारे में हम लोगों ने इनिशियली डिस्कस किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फाइनली आपका एनर्जी जनरेट होता है, right, and because of this reason, right, because of the reason why energy is generated inside the mitochondria, it is produced inside the mitochondria, it is also known as the powerhouse of the cell, हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। now in case of anaerobic respiration what happens is
आपका ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में तो कन्वर्ट हो गया है इन साइटोप्लाज्म. नाउ व्हाट हैपेंस when there is no oxygen, right, when there is an absence of oxygen, ये पायरुवेट जो है ये फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी. इट इज ब्रोकन डाउन इनटू इथेनॉल. ठीक है, ये इथेनॉल या जिसे हम अल्कोहल बोलते हैं उसमें ब्रेक डाउन किया जाता है इसको, और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, सो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, सॉरी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे ईस्ट, राइट. अभी ईस्ट आपके सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मीनिंग ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में सर्वाइव कर सकते हैं. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स which can survive in the absence of oxygen, they are called anaerobes, right. And they are called anaerobes because they can perform anaerobic respiration, right. They can get energy through the process of anaerobic respiration. So जैसे मैंने आपको पहले बताया, ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होता है, आपका ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है इट इज ब्रोकन डाउन और इट ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. सो glucose in the absence of oxygen, right, this being the key word or key term over here, right, in the absence of oxygen we get alcohol, right, plus carbon dioxide plus energy. ठीक है. Now one thing which you need to remember over here is anaerobic respiration के process से जो energy amount of energy release होती है, right, that is less compared to aerobic respiration, right. तो ये आपका पूरा anaerobic respiration का process है, amount of energy generated is less compared to aerobic respiration, right. So this is also quite straightforward. यहीं पे अगर आपको कंपेयर करना है, राइट, कि एरोबिक रेस्पिरेशन में किस तरह का रिएक्शन होता है तो उसे भी लिख लेते हैं नीचे, राइट. आपका एरोबिक रेस्पिरेशन को अगर मैं मेंशन करूं तो दैट वुड बी योर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, राइट, उसे ब्रेक डाउन किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन and we will get carbon dioxide plus water plus energy, right. So anaerobic respiration में जो additional चीज, right, या जो different चीज produce हो रही है that is alcohol, right. So because yeasts, right, because they are anaerobes, because of the fact that they can perform anaerobic respiration, ये alcohol industry या your industries where you make wine and beer, right, वहाँ पे इन्हें use किया जाता है, right. So because of the fact that they can respire anaerobically, right, and इस process की वजह से क्या produce होता है, alcohol produce होता है. they are frequently used in your industries जहाँ पे आप wine produce करते हैं and beer produce करते हैं, ठीक है. जहाँ अगर हम अपने खुद की बॉडी की बात करें, राइट, तो सॉरी, ऐसा बहुत बार हो सकता है दैट आप बहुत हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट, यू आर रनिंग और यू आर इन्वॉल्व्ड इन एनी मेजर फिजिकल एक्टिविटी. तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो मसल सेल्स है, राइट, उसमें जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है इट एक्सीड्स, राइट, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आप उतने रेट से रेस्पायर नहीं कर सकते, राइट, आप उतने रेट से ब्रीद नहीं कर सकते हो. तब क्या होता है, आपके जो मसल सेल्स होते हैं फॉर अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम इवन दे स्टार्ट रेस्पायरिंग एनएरोबिकली, ठीक है, वो भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, राइट. बट अगेन दिस इज समथिंग विच हैपेंस फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. और ये भी कब होता है, ये तब होता है कि जब हमारे बॉडी में टेम्पररी डेफिशिएंसी होती है ऑक्सीजन की, ठीक है. ऑक्सीजन की टेम्पररी डेफिशिएंसी आने की वजह से हमारा बॉडी
एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, राइट। एंड लाइक आई सेड, राइट, जब भी आपकी बॉडी बहुत हैवी एक्सरसाइज करती है, राइट, सपोज कीजिए कि आप बहुत फास्ट साइकिलिंग कर रहे हो, आप अपने दोस्तों के साथ रेस कर रहे हो, राइट, यू आर वॉकिंग और यू नो आप किसी ट्रैक पे गए हुए हो, आप किसी हैवी चीज को लिफ्ट कर रहे हो, उस समय आपकी बॉडी जो है, राइट, मोर स्पेसिफिकली आपके जो मसल सेल्स हैं वहां पे एनर्जी की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, राइट, इट बिकम्स हाई। एंड एनर्जी की डिमांड तो बढ़ गई, राइट, लेकिन जो ऑक्सीजन का सप्लाई है, राइट, वो तो लिमिटेड ही है, ठीक है, क्योंकि आपके बॉडी पे जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, राइट। और जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हम लोगों ने देखा कि इसको इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक इज द फूड, राइट, प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये एनर्जी को जनरेट करने के लिए, ठीक है, दिस इज स्टिल limited, right, and at that moment what happens is anaerobic respiration is something which starts taking place in the muscle cells, ठीक है, ताकि आपकी जो एनर्जी की डिमांड है वो कम नहीं हो, राइट, एनर्जी की डिमांड कम, एनर्जी प्रोडक्शन कम नहीं होना चाहिए, राइट। सो उसकी वजह से आपकी बॉडी इट हैज अडेप्टेड इटसेल्फ इन अ वे थ्रू विच ये जो डिमांड है एनर्जी की, राइट, दिस इज फुलफिल्ड। सो व्हाट हैपेंस इज हमारे मसल सेल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, right? So now one thing which you have to understand is this respiration, this anaerobic respiration is different from the type which happens in the body of yeast, right? So whenever the question asks you, right, that describe the process of anaerobic respiration, so you know, please make sure that you read the question properly, whether it is talking about in case of yeast or in general, or it is specifically talking about anaerobic respiration in muscle cells, right? तो और आप इस रिएक्शन को लिखेंगे भी इस तरह से दैट ग्लूकोज in muscle cells also in absence of oxygen it is broken down to produce lactic acid plus energy, ठीक है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी दोनों प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन में, राइट। एंड अगेन वन थिंग विच यू शुड नोटिस ओवर हियर इज दिस, ठीक है, जो भी तीनों अभी तक हम लोगों ने रिएक्शंस देखे, ये सारा रिएक्शन हो किस लिए रहा है, बिकॉज आपके बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, राइट, एंड इसकी डिमांड को मीट करना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए एक काम करते हैं, ये तो हो गया आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन इन योर मसल सेल्स, राइट। एरोबिक रेस्पिरेशन का एक बार रिएक्शन फिर से लिखते हैं, वेयर ग्लूकोज इन presence of oxygen, right, it is broken down to produce carbon dioxide plus water plus energy, right। ये हो गया आपका एरोबिक रिएक्शन रेस्पिरेशन। एंड यहीं पे साथ में लिखते हैं एनारोबिक रिएक्शन, ठीक है, बट दिस इज इन ईस्ट, ठीक है। तो उसके केस में क्या होगा, ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसकी वजह से अब क्या होगा, हमें अल्कोहल मिलेगा, राइट, इट इज ब्रोकन डाउन टू गिव अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ठीक है। तो ये आपके तीन रिएक्शंस, राइट, तीन तरह के रेस्पिरेशन जिसके बारे में आपको याद रखना है, जिसके बारे में समझना है आपको इस चैप्टर में, राइट। सो आपने ये भी नोटिस किया होगा, राइट, कि आप अगर बहुत खेल रहे हैं बहुत टाइम तक, राइट, और व्हेन यू आर रनिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब आपके मसल्स में क्रैम्प आने लगते हैं, राइट, तो जकड़न होने लगती है एंड इट स्टार्ट्स हर्टिंग, राइट। सो बेसिकली दिस हैपेंस बिकॉज आपके मसल सेल्स जो हैं वो एनारोबिकली रेस्पायर कर रहे हैं,
right? So these cramps in your muscles, they happen because आपके मसल में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है? इट इज नॉट कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, इट इज पार्शियली ब्रोकन डाउन इनटू लैक्टिक एसिड, ठीक है? और यही लैक्टिक एसिड जब आपके मसल सेल्स में अक्यूमुलेट होने लगती है, व्हेन इट स्टार्ट्स कलेक्टिंग इन योर मसल सेल्स, राइट, उसी की वजह से आपको मसल क्रैम्प्स आते हैं, राइट? सो यू नो देयर इज नथिंग टू बी स्कैर्ड अबाउट इट, आप इसे बहुत इजीली क्योर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? टेक अ, you know, you start massaging that area, right? Or you know, you apply something hot on it. तो अगर आप हॉट वाटर अप्लाई कर रहे हैं उस जगह पे, या आप उस जगह को मसाज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उस जगह पे ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज होने लगता है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा, राइट, कि ब्लड अपने साथ क्या लेकर आता है, ब्लड अपने साथ आरबीसीज लेकर आता है, राइट, रेड ब्लड सेल्स लेकर आता है। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन, राइट, आपके आरबीसीज में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, राइट? सो आप जितना किसी पर्टिकुलर एरिया को मसाज करते हो, या वहाँ पे यू नो हॉट वाटर अप्लाई करते हो, तो आपके ब्लड वेसल्स डायलेट होते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, तो यू नो ऑक्सीजन उस अफेक्टेड एरिया में ज्यादा पहुंचती है, राइट, बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ योर रेड ब्लड सेल्स, राइट? सो you know, oxygen supply increases to that particular area, and the increase in the supply of oxygen, this results in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water, right? तो जो भी lactic acid accumulate हुआ था आपके मसल सेल में, राइट, वो completely break down हो जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। This carbon dioxide is then removed from your body by the process of exhalation, राइट? सो इस तरह से आप मसल क्रैम्प्स को क्योर कर सकते हैं। देन कम्स ब्रीदिंग, राइट? नाउ द मेन पार्ट which you have to understand over here is breathing is a physical process, राइट? या अगर मैं इसको दूसरे टर्म में बताऊं तो इट्स अ मैकेनिकल प्रोसेस। सो व्हेन आई से मैकेनिकल, आई डोंट मीन दैट वी रिक्वायर gears or screws to keep this thing working, right? What I mean is, right, when I say that this is a physical process, I mean that there is no form of chemical reaction taking place, right? किसी भी तरह का केमिकल एक्टिविटी वहां पे नहीं हो रही है, ठीक है? ब्रीदिंग को अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊं, सो ब्रीदिंग इज द प्रोसेस इन विच वी टेक इन एयर, ठीक है, हम एयर अंदर लेते हैं, एंड वी ब्रीद आउट एयर, राइट? एज सिंपल एज दैट। the air which we breathe in, that is something which is rich in oxygen. ये ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में फिर अब्सॉर्ब हो जाता है। when we breathe out, जो कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, जो हमारे सेल का वेस्ट प्रोडक्ट है, वो हमारे पूरे बॉडी से अक्यूमुलेट होके हमारे ब्लड में कलेक्ट होता है, ब्लड से लंग्स में पहुंचता है, एंड व्हेन वी ब्रीद आउट, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी बाहर निकल जाता है, राइट? सो that is it, right? That is your entire process of breathing, where we breathe in air which is rich in oxygen, and we give out air which is rich in carbon dioxide, right? And उसमें help कौन करता है? उसमें help करते हैं हमारे lungs, right? Our lungs help us do that, along with our nose and trachea and other respiratory organs, right? So this process in which air which is rich in oxygen, that is taken inside our body, right, that process is called inhalation, right? Or the process through which carbon dioxide is removed out from the body, ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सहेलेशन, ठीक है? सो इनहेलेशन is breathing in of oxygen, exhalation is breathing out of carbon dioxide, right? So
ब्रीदिंग इज समथिंग विच इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये एक ऐसा प्रोसेस है जो थ्रू आउट हमारे लाइफ कंटिन्यू चलते ही रहता है, कभी भी बंद नहीं होता है. इफ यू if you feel that you are facing any sort of difficulty in breathing, right, then please do seek help, right. It is not something which is natural. The number of times, right, a person breathes in a minute, that is called your breathing rate. ठीक है, आप एक मिनट में कितने बार ब्रीद कर रहे हो, उससे आपका ब्रीदिंग रेट डिटरमाइन किया जा सकता है. एक ब्रीदिंग का प्रोसेस जो होता है, राइट, इफ आई हैव टू टेल यू दैट you have to take one breath. So one breath will involve one inhalation plus one exhalation. Yeah. So one inhalation is when you take in air, right? That is right. So this was one breath, right? जिसमें मैंने एक बार inhale किया and मैंने एक बार exhale किया, right? So on an average, right, एक average human adult जो होता है, when they are at rest, right, so be very careful about this. When an average human is at rest, so they breathe about 15 to 18 times in a minute, right. And in the same case, right, when you are involved in any sort of physical activity, जिसमें रनिंग की जरूरत पड़ रही है, राइट, लिफ्टिंग, हेवी लिफ्टिंग की जरूरत पड़ रही है, सो उस केस में दिस कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट, राइट. ये 25 टाइम्स पर मिनट तक भी इंक्रीज कर सकता है आपका ब्रीदिंग रेट. ओके, तो कभी भी, राइट, अगर आप किसी भी तरह के इंटेंस वर्कआउट में इन्वॉल्व है, राइट, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो जितनी ज्यादा आपके बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, राइट, आपका ब्रीदिंग रेट जो है वो भी बढ़ जाएगा, राइट. क्योंकि सीधी सी बात है, देखिए ये सारी चीजें हैं ना, अब कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ. आपका जो सेल है, राइट, आपके सेल में एनर्जी जो है वो खत्म हो रही है, राइट. नाउ एंड सपोज कीजिए मसल सेल की बात कर रहा हूँ, राइट. इन ऑर्डर फॉर यू टू कीप रनिंग, आपके बॉडी की जो मसल सेल्स है उसे एनर्जी की जरूरत हो रही है. एंड बिकॉज यू हैव बिन रनिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, एनर्जी अब खत्म हो रहा है, राइट. ये एनर्जी को जनरेट करने के लिए फिर से आपके सेल में किस चीजों की जरूरत पड़ेगी? एक तो ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी जो आपको खाने से मिलती है. द अदर थिंग विच यू रिक्वायर इज ऑक्सीजन, राइट. अब ये ऑक्सीजन आपको कैसे मिलेगा? दिस ऑक्सीजन यू विल गेट व्हेन यू विल इंक्रीज योर ब्रीदिंग रेट. तो जितना ज्यादा आप जल्दी जल्दी ब्रीथ करोगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, उतना ज्यादा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा आपके सेल में, जिसकी वजह से एनर्जी उतनी प्रोड्यूस होगी, राइट. एंड दिस एनर्जी कैन देन बी यूटिलाइज्ड बाय योर बॉडी. सो बेसिकली इसमें कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, राइट, जो ब्लड आता है आपका, राइट, विच कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम योर लंग्स, तो आपके ब्लड वेसल्स से दे गेट ट्रांसफर टू योर सेल, राइट. ऑक्सीजन आपके सेल्स में ट्रांसफर होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट. एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, द वेस्ट विच इज जनरेटेड फ्रॉम दिस प्रोसेस, इसे वापस आपके ब्लड वेसल में आपके जो भी सेल्स होते हैं वो ट्रांसफर कर देता है, राइट. और ये जो है ये वापस आपके लंग्स से एक्सहेल आउट कर दिया जाता है. सो यू नो, the more you breathe, the more oxygen you take, and it speeds up the breakdown of food, and more energy is released, right. So now the question comes is how do we breathe exactly then? ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है? So जो भी हम ब्रीद करते हैं, राइट, सो सबसे पहले तो हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, राइट, जो एयर है वो अंदर जाता है, राइट. नॉस्ट्रिल्स आर द स्मॉल होल्स, राइट, विच आर प्रेजेंट ऑन अवर नेक, ऑन अवर नोज, सॉरी. सो एयर हमने ब्रीथ किया, ठीक है, ये हमारे नेजल कैविटी में जाता है, राइट. कैविटी का मतलब, कैविटी मीन्स अ हॉलो स्पेस, राइट, एम्प्टी स्पेस. सो
जो भी एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं राइट, ये हमारे नॉस्ट्रिल से हमारे नेजल कैविटी में जाता है, नेजल कैविटी से फेरिंग से होते हुए राइट इट रीचेस अवर लंग्स राइट, ये हमारे लंग्स तक पहुंचता है राइट, वाया द ट्रकिया एंड द फेरिंग्स इट रीचेस अवर लंग्स राइट। अभी लंग्स जो है राइट दे आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, ठीक है, हमारे चेस्ट में भी एक हॉलो स्पेस होता है एंड दैट इज प्रोटेक्टेड बाय अवर रिब केज, ठीक है, जो भी हमारा रिब केज होता है वो इसे प्रोटेक्ट करता है राइट। यहाँ पे हमारा हार्ट भी प्रेजेंट होता है, सो कैविटी सराउंडेड बाय रिब्स। और यहाँ पे बॉटम पे अगर आप देखोगे राइट, सो एक मस्कुलर शीट प्रेजेंट होती है जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं राइट, विच इज प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी राइट। सो ब्रीदिंग के टाइम किन चीजों की मूवमेंट इन्वॉल्व होती है, इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज राइट। सो अगर आप इस प्रोसेस को देखें राइट, सो व्हेन वी इनहेल right and we exhale, so both your ribs as well as the diaphragm they move right, so whenever we are inhaling जो ribs हैं वो up और outwards की तरफ move करते हैं, ठीक है, they move up and outwards whereas the diaphragm it moves down, ठीक है। तो जो आपका ये circular diaphragm होता है it almost straightens up right, और इसकी वजह से क्या होता है व्हेन दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस राइट, तो उसकी वजह से आपके चेस्ट कैविटी में जो स्पेस है दैट इंक्रीजेस राइट, एंड दैट फोर्सेस द एयर व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड योर बॉडी टू रश इनसाइड, ठीक है, आपके नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर जो है वो आपके लंग्स तक पहुंचती है। अब your lungs they get filled with air at the same time, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एयर में that is then absorbed into the blood right, blood which surrounds your lungs right, और lungs के अंदर there are smaller structures जिसे हम alveoli बोलते हैं right, जिसके थ्रू आपके एयर का एक्सचेंज होता है। एक्सलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ठीक इसका उल्टा राइट, the ribs which has moved up and outwards right, it comes back to its original position, that is it comes down and inwards right, and your diaphragm it again moves back to its original position right, that is ये goes back, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो स्पेस पहले इंक्रीज हुआ था दिस स्पेस इज नाउ रिड्यूस्ड राइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो हवा अंदर आई थी हमारे लंग्स के दैट इज अगेन पुश्ड आउट ऑफ अवर बॉडी राइट, बट इन दिस टाइम व्हाट हैज हैपेंड, जो एयर का एक्सचेंज होना था बिटवीन द ब्लड एंड बिटवीन एल्वियोली राइट, दिस हैज टेकन प्लेस राइट, जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में प्रेजेंट था बिकॉज ऑफ ऑल द सेल्यूलर रेस्पिरेशन वो हमारे बॉडी से रिमूव हो जाता है राइट। सो हमारे चारों तरफ जो भी एयर प्रेजेंट होता है राइट, उसमें आपको पता है कि बहुत सारे अलग अलग तरह के डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं राइट, उसमें स्मोक होता है, उसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं राइट, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, ठीक है, फंगल स्पोर्स हो सकते हैं उसमें, एलर्जेंस हो सकते हैं। सो whenever we inhale such substances right, there are chances that most of it they get trapped in the hair which is present in our nasal cavity right, पर कभी कभी ऐसा हो सकता है that these particles that we inhale right, they get passed through these hair which are present in our nasal cavity, and उसकी वजह से क्या हो सकता है, it may irritate the lining of the cavity right, it might act as an allergen जिसकी वजह से आपको एलर्जिक रिएक्शंस आ सकते हैं राइट, आपको इरिटेशन हो सकता है, तो यू मे स्टार्ट स्नीजिंग right, and whenever you sneeze right, the purpose of sneezing is you आपकी बॉडी ये जो फॉरेन सब्सटेंस आपके बॉडी के अंदर एंटर कर गई है उसे बाहर निकालने का ट्राई करती है राइट, इट ट्राइज टू एक्सपेल आउट दीज फॉरेन पार्टिकल्स राइट, एंड सो दैट एक डस्ट फ्री एलर्जन फ्री राइट एयर आपके बॉडी के अंदर एंटर कर सके। सो व्हाट एग्जैक्टली डू वी ब्रीद आउट राइट, अगर हमें इसे परसेंटेज के सेंस में समझना है तो सपोज कीजिए द एयर दैट यू ब्रीद इन राइट, इट इज मेड अप ऑफ दीज
three gases, right? Oxygen, carbon dioxide, and nitrogen. Now nitrogen, it is an inert gas, right? When I say inert gas, matlab it is not reactive, ठीक है? ये हमारे बॉडी में किसी भी तरह का रिएक्शन ही नहीं होता नाइट्रोजन के साथ, राइट? सो अगर हम ओवरऑल एयर का कॉम्पोजिशन देखें, सो वी नो दैट 79%, क्लोज टू 79% ऑफ द एयर इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, राइट? 20% इज मेड अप ऑफ योर ऑक्सीजन, एंड रिमेनिंग जो है उसमें वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल अदर ट्रेस गैसेस प्रेजेंट होते हैं. सो ये जो 79% ऑक्सीजन आपके बॉडी में एंटर करता है व्हेन यू इनहेल, राइट, पूरा का पूरा ऐसे ही बाहर निकल जाता है, राइट? द इंटरेस्टिंग पार्ट कम्स ओवर हियर. You inhale the air which you inhale, right? It contains 21% of it is made up of oxygen. पर जो आप exhale कर रहे हैं, right? That air only contains 16% of oxygen, right? So here it shows that oxygen is actually being absorbed by your body, right? And the most interesting thing comes over here, right? Where जो एयर आप इनहेल कर रहे हैं उसमें सिर्फ 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, पर द एयर विच यू आर एक्सहेलिंग, राइट, उसमें 4% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. और ये इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से हुआ? दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन की वजह से दिस इंक्रीज in carbon dioxide has taken place. So when we see the process of breathing in other animals, right? So if we take examples of animals like elephants, lions, cows, goats, frogs, lizards, right? Sorry, they have lungs, right, in their chest cavity, just like us. ठीक है, ह्यूमन बींग्स की तरह उनके बॉडी में भी लंग्स प्रेजेंट होते हैं, एंड मोर और लेस सेम तरह की ही एक्टिविटी के थ्रू दे ब्रीथ, राइट? But then let's take an example of cockroaches, right? So cockroaches या बाकी भी जो insects होते हैं कुछ, उनके बॉडी में क्या होता है? उनके बॉडी में there are small openings, right? जो उनके बॉडी के साइड में प्रेजेंट होते हैं, right? There are small openings जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, and these openings are called spiracles, ठीक है? अब इसमें होता कैसा है कि उनके बॉडी के अंदर cockroaches and other insects, they have a network of tubes, right? Network of air tubes, जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं. तो अब इस प्रोसेस में क्या होता है? जो एयर है इट एंटर्स वाया योर स्पिरिकल्स, राइट? और आपके ट्रैकिया के हेल्प से इट ट्रेवल्स थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है? पूरे बॉडी में ये ट्रैवल करता है, राइट? इट ट्रेवल्स थ्रू आउट द बॉडी, एंड यू नो जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस है, राइट, वो यहाँ पर होता है. सो द ऑक्सीजन रिच एयर, राइट, इट एंटर्स इनटू द बॉडी, स्पिरेकल्स के थ्रू एंटर करता है, और फिर उसके बाद जो आपके ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं, राइट, उसके थ्रू इट ट्रेवल्स थ्रू आउट द बॉडी. बॉडी टिश्यू, बॉडी के टिश्यूज तक पहुंच के जो आपका ऑक्सीजन है, राइट, वो डिफ्यूज कर जाता है, एंड थ्रू दिस प्रोसेस इट रीचेस ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, राइट? रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को वापस आपके ट्रकिया ट्यूब्स के थ्रू वापस स्पिरेकल्स से रिमूव कर दिया जाता है, राइट? सो इंसेक्ट्स के केस में यू नो कि लंग्स नहीं होते, राइट? इंस्टेड दे ब्रीथ थ्रू द स्मॉल होल्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी सरफेस, राइट, जिसे हम स्पिरेकल्स बोलते हैं. Earthworms are even more interesting, right? Earthworms, they can breathe through their skin, right? वो अपने स्किन के थ्रू ब्रीथ कर सकते हैं. दैट इज बिकॉज जो स्किन होती है अर्थवर्म की, राइट, इट इज वेरी मॉइस्ट, राइट, बहुत स्लाइमी होता है. नेक्स्ट टाइम जब बारिश का सीजन हो, राइट, तो प्लीज बाहर निकलिए, गार्डन में जाइए एंड ट्राई पिकिंग अप एन अर्थवर्म, राइट? दे डोंट वरी, इट वोंट बाइट यू, राइट? इट्स नॉट पॉइजनस ऑल्सो, पर प्लीज वापस आके अपने हाथ जरूर धो लीजिएगा, right? But try picking an earthworm, right? That is how you learn things, and you will see that it's very slimy, right? It's very moist, and because of that reason, right, because of the fact that the skin is very moist and slimy, so gases जो हैं they can easily pass through them, राइट? उनके स्किन के थ्रू गैसेस बहुत इजीली पास कर सकते हैं. सिमिलरली अगर हम लोग फ्रॉग्स का एग्जांपल ले, राइट, सो नाउ फ्रॉग्स इज एन इंटरेस्टिंग केस बिकॉज ये अपने लंग्स के थ्रू भी ब्रीथ कर सकते हैं और ये अपने स्किन के थ्रू भी ब्रीथ कर सकते हैं, राइट? बिकॉज इवन इन केस ऑफ फ्रॉग्स उनकी जो स्किन होती है बहुत ही मॉइस्ट होती है,
राइट, बहुत ही स्लिपरी होती है, and because of which air it can diffuse through their skin as well. Underwater, right, that is something which many of us might wish for, right, ki kash hum bhi pani ke andar saans le sakte, but fishes, they do this with a lot of ease, right. Fishes, they have special structures on their body जिसे हम gills बोलते हैं, right. तो अब गिल्स जो होते हैं ये किस चीज में हेल्प करते हैं फिशेस को, दे हेल्प देम टू यूटिलाइज ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, राइट। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने में गिल्स हेल्प करते हैं। सो गिल्स बेसिकली क्या होते हैं, दे आर द प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन, राइट, स्किन के प्रोजेक्शंस होते हैं। एंड अगर आप गिल के स्ट्रक्चर को ठीक से देखो तो यहाँ पे यू नो देयर इज अ वेरी एक्सटेंसिव सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल, राइट। आपके ब्लड वेसल्स का बहुत ही एक्सटेंसिव सप्लाई होता है, तो जो भी वाटर पास होता है आपके गिल्स के बीच से, राइट, सो जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वाटर में, दैट इज अब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, राइट। और इसी तरह से जो गिल्स है, राइट, वो ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को लेने में हेल्प करते हैं, राइट। एंड इन द सेम वे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट होता है, राइट, दैट इज रिमूव्ड, राइट, सॉरी, दैट इज रिमूव्ड एंड वो वाटर के साथ बॉडी से बाहर निकल जाता है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, डू प्लांट आल्सो रेस्पायर? सो द आंसर टू दिस इज यस, ऑफ कोर्स दे डू, राइट। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया दैट रेस्पिरेशन इज समथिंग व्हिच ऑल द ऑर्गेनिजम्स दे परफॉर्म, बिकॉज उन सबको ही को एनर्जी की जरूरत होती है, राइट। जो आपके प्लांट्स होते हैं, दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड दे ऑल्सो गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। यू फाइंड दैट सरप्राइजिंग बट इट इज ट्रू। एंड यू नो देर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे समझनी है इज दैट फोटोसिंथेसिस एंड respiration, right, these two are very different processes, ठीक है। प्लीज इन दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, राइट, जैसे बाकी ऑर्गेनिजम्स में होता है, सेम केस आपके प्लांट्स में भी होता है। सेल्स के अंदर ऑक्सीजन को यूज किया जाता है ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और वाटर प्रोड्यूस होता है अलोंग विथ एनर्जी, राइट। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को देन रिमूव कर दिया जाता है प्लांट के बॉडी से, या अगर दिन का टाइम हो तो ये सेम कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी यूज किया जाता है, राइट। एंड again this thing happens with the help of stomata, right. Stomata, they are the tiny pores, right, which are present on the leaves, जिसके through exchange of gases takes place, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए, राइट, अगर मैं आपको फोटोसिंथेसिस का पूरा रिएक्शन बताऊं तो उसमें कैसा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विथ वाटर, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है। इस इन दोनों के इस रिएक्शन से हमें क्या मिलता है, इस रिएक्शन से हमें मिलता है ग्लूकोज प्लस water plus oxygen, right. Now this oxygen, it is removed or by the plants, right, into the atmosphere। ये जो ग्लूकोज बनाया प्लांट ने, ठीक है, अब ये ग्लूकोज को तो ऐसे यू नो स्टोर करके तो रखेंगे नहीं प्लांट्स अपने बॉडी में, राइट। ये ग्लूकोज जो बना है ये क्या है, दिस इज द फूड दैट प्लांट्स दे हैव मेड फॉर देमसेल्व्स, राइट। सो इवन नाउ प्लांट्स दे आल्सो रिक्वायर एनर्जी। तो ये ग्लूकोज जो है ये अब किस में यूज होगा, ये यूज होगा अब आपके रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। तो दिस सेम ग्लूकोज इन द सेल्स ऑफ द प्लांट, दे विल बी ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसा बोलता है दैट प्लांट्स दे ओनली टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, देन इट इज वेरी रॉन्ग। ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए इवन प्लांट्स को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। दिस ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, right. And this carbon dioxide is then
removed from the body of the plant, या अगर daylight का time हो तो चांसेस ये भी है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को वापस यूटिलाइज कर लिया जाएगा यहाँ पे, राइट। वापस आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होगा, ठीक है। सो प्लीज रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच में कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। दे आर डिफरेंट प्रोसेसेस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स वो फूड बनाते हैं, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू ये सेम फूड को, ये सेम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है टू जनरेट एनर्जी, राइट। सो यू नो जैसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, राइट, उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को, सेल्स को फॉर दैट मैटर, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली आपके प्लांट्स के भी जो डिफरेंट सेल्स होते हैं, राइट, प्लांट्स को भी अपने सारे एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी की जरूरत हो पड़ती है, वेदर इट्स अब्सॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स, राइट, उसे लीव्स तक पहुंचाने के लिए एनर्जी जरूरत होती है, फूड को प्लांट बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, राइट। सो जो रूट्स होते हैं, राइट, इवन उनके जो सेल्स होते हैं, इवन दे नीड ऑक्सीजन, राइट, टू जनरेट एनर्जी। So certain roots, what they do is they take up air, right, और ये air कहाँ से लेते हैं? From the particles, right, soil particles के बीच में जो air pockets होते हैं, right, so उसके through, you know, roots they take up the air, right, they take up the oxygen, right, from the spaces present between the soil particles, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। So that was it in this entire topic, right? I hope now you have a much clearer idea about what is aerobic respiration, what is anaerobic respiration, right, and anaerobic respiration in muscle cells, right. Also, what exactly is breathing, right? Breathing is a physical process जिसमें आपके जो organs और parts हैं आपके पूरे respiratory system के, your lungs, your ribs, right, ये सब के movement के through air आपके body से अंदर और बाहर जाता है, right, और exchange of gases is something which takes place, right, and how these two processes, photosynthesis and respiration, are different from each other, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का प्लांट्स यूज क्यों करते हैं? टू मेक देयर फूड। रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्यों होता है इन प्लांट्स और फॉर दैट मैटर इन एनी ऑर्गेनिज्म? टू जनरेट एनर्जी, राइट। सो that was it for the entire topic. I do hope that you got to learn something new, right, and it would be very helpful to each and every one of you, right. So thank you so much everyone.